बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय। बरमा हिन्जावसा गोजौ फरायसालियाव दिनै गोदानै बेखेवदों डक्टर नीलेश एम देसाई स्पेस लेब। फरायसाफोरखौ अख्रांमा नायबिजिरनायाव बांसिन गोसो बोहोनायनि थांखिजों बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमा हिन्जावसा गोजौ फरायसालियाव दिनै इसर'नि डाइरेक्टर डक्टर नीलेश एम देसाईनि मुङै बे स्पेस लेबखौ बेखेवनाय जायो। बे स्पेस लेबखौ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव इन्डियान स्पेस रिसार्च अर्गेनाइजेशननि डाइरेक्टर डक्टर नीलेश एम देसाईआ बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियाव नुजाथिनानै गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ खौरां बिजोंनि जोहै बिटिआर सरकार आरो इसर'नि मददजों बिटिआर ओनसोलाव फरायसाफोरखौ अख्रांमा नायबिजिरनायनि फारसे गोसो बांहोनायनि थांखिजों स्पेस लेब बेखेवनायनि थाखाय थांखि लानाय जादों आरो बे असिलायैनो दिनै बरमा हिन्जावसा गोजौ फरायसालियाव बे स्पेस लेबखौ बेखेवनाय जादों होननानै बिथाङा फोरमायथियो। इसरो भूमिका स्पेस এটা ইনষ্টিটিউট আৰু লগতে বিটিআৰ গভৰ্ণমেণ্ট একেলগে আমি 10খন স্পেচ লেব আমাৰ স্কুলবোৰত খোলাৰ কাৰণে কাম আৰম্ভ হৈছিলে আৰু আজি এইটো আমাৰ ইছৰোৰ ডাইৰেক্টৰৰ নামত ডক্টৰ নীলেশ দেসাই স্পেচ লেব বৰমা গাৰ্লছ হাই স্কুলত তেখেতৰ দ্বাৰাই মুকলি কৰা হৈছে। আজিৰ দিনত আমি সকলো আনন্দিত হৈছোঁ যে বিটিআৰ অঞ্চলৰ শিক্ষা আগুৱাই নিবৰ কাৰণে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিজ্ঞান টেকনলজি আৰু বিভিন্ন এডুকেশ্যনবিলাক আজি প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন প্ৰয়াস কৰা হৈছে। ইয়াৰে এটা ডাঙৰ পদক্ষেপ হিচাপে আজি ইছৰোৰ ডাইৰেক্টৰজন বৰমালৈ আহিছে আৰু এই স্পেচ লেবটো মুকলি কৰিছে আৰু তেখেতৰ লগত কথা হৈছে যে আমাৰ বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীও ছেটেলাইট নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে সুবিধা তেখেতে প্ৰদান কৰিব। গতিকে আমাৰ এটা বেটছ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অলৰেডি 10জন ইছৰোলৈ গৈ আহিছে। নেক্সট আমাৰ টিচাৰ আৰু ষ্টুডেণ্টৰ আৰু বেটছ যাব আৰু লগতে যিসকল ষ্টুডেণ্ট আমাৰ বিচাৰে এই প্ৰজেক্টত এই মিছনত কাম কৰিবলৈ তেখেতসকলক আমি সিলেকশ্যন কৰিম আৰু ইছৰোৰ গাইডেন্সত তেখেতসকলক ছেটেলাইট বনোৱাৰ কাৰণে ট্ৰেইনিং দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো আমি এই বছৰত আৰম্ভ কৰিম। আজিৰ সময়ত মই সকলোকে ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ যে বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ শিক্ষাটো লাহে লাহেকৈ ভাল হৈ আহিছে। এটা সময়ত আমাৰ ফাউণ্ডেশ্যন লেভেলত বহুত অসুবিধা আছিলে, কিন্তু এতিয়া ফাউণ্ডেশ্যন লেভেলত বহুত ভাল হৈছে আৰু এই বছৰ আমি কিছুমান আমাৰ পদক্ষেপ আছে যিটো 100খন স্কুলত 1 ষ্টুডেণ্ট 1 ফাইল আমি আৰম্ভ কৰিম ষ্টুডেণ্টৰ বিভিন্ন লেভেলটো ট্ৰেক আৰু ট্ৰেছ কৰাৰ কাৰণে। লগতে কিতাপৰ নাটনি হৈ আছিলে আগতে, এই বছৰ আমি কিতাপৰ নাটনি যিমানখিনি অসম চৰকাৰৰ পৰা আৰু আমাৰ প্ৰশাসনৰ পৰা আহে, যদি কিবা ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে কিতাপ কম থাকে আমাৰ কাউন্সিলৰ তৰফৰ পৰাও আমি প্ৰিণ্ট কৰাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছোঁ যাতে কিতাপটো সময়মতে পায়। বাকী আমাৰ গাৰ্জেন মিট, SMC, SMDC মিট আৰু সকলো উইংবিলাক এক্টিভ কৰাৰ কাৰণে বিটিআৰ চৰকাৰৰ পৰা কিছুমান পদক্ষেপ আৰম্ভ হৈছে। মই আশা ৰাখিছোঁ আমি সকলো দিশত আগবাঢ়ি যাব পাৰিম। বৰমা গাৰ্লছ হাই স্কুলৰ ইয়াৰ হেডমাষ্টাৰ ডাঙৰীয়া আৰু ইয়াৰ ষ্টাফে এইখন বিদ্যালয়ত দিম যাতে এইখন বিদ্যালয়খন আৰু আগুৱাই যাব পাৰে। ভাল হৈছে, ফাউণ্ডেশ্যনটোও ভাল হৈছে। এইবাৰ গুণু উৎসৱত অলপ মানে আমাৰ কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্ট অলপ পিছত আছে, ইয়াৰে ৰিভিউ মিটিংবিলাক চলি আছে। আজিও বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আমাৰ গুণু উৎসৱত কোনখন বিদ্যালয় ভাল হ'ল বেয়া হ'ল কি কাৰণত হ'ল ইয়াৰ এটা ৰিভিউ মিটিং অলপ পিছত আৰম্ভ হ'ব। গতিকে শিক্ষকসকলৰ ট্ৰেইনিং, যিবিলাক খালী পদবিলাক পূৰণ কৰা আৰু বিভিন্ন কাৰ্যসূচীবিলাক ইতিমধ্যে আমি হাতত লৈছোঁ আৰু সেই কাৰ্যসূচীখিনি 100% ৰূপায়ণ কৰিব পাৰিলে আমাৰ 5খন জিলাত শিক্ষাটো বহুত আগুৱাই যাব, সেইটো আমি ভাবিছোঁ। ড্ৰপ আউট ৰেটটো আছে আমাৰ এলিমেণ্টাৰীতকৈ ছেকেণ্ডাৰীত ষ্টুডেণ্ট ড্ৰপ আউট ৰেটটো বেছি আছে। তো এইকাৰণে কেনেকৈ ড্ৰপ আউটটো আমি জিৰ' কৰিব পাৰোঁ বা মিনিমাইজ কৰিব পাৰোঁ, ইয়াৰ কাৰণে এই বছৰ আমি কিছুমান পদক্ষেপ ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু আমি কাম কৰিব ওলাইছোঁ। প্ৰচেছ চলি আছে। PGT আৰু GT গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰু পষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ ইণ্টাৰভিউ চলি আছে। এলিমেণ্টাৰী লেভেলৰ আমাৰ যিখিনি খালী পোষ্ট আছে ইয়াৰ SIOৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ। SIO পাছ হোৱাৰ SIOটো এপ্ৰুভ হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কিছুমান টেট পাছ কৰা টিচাৰসকল আছে তেখেতসকলক ৰেগুলাৰ কৰিব পাৰিম আৰু নতুনকৈ টেট পাছ কৰি যিসকল আছে তেখেতসকলক আমি অতি শীঘ্ৰে ৰিক্ৰুইট কৰিব পাৰিম। स्टूडेंट के लिए कैसे बेनिफिट है?
जैसा कि आपको पता है कि आजकल इसरो की एक्टिविटी बहुत बढ़ रही है, तो पूरे कंट्री में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद काफ़ी उत्साह है। तो इसको टैप करते हुए व्योमिका फाउंडेशन, अगस्त फाउंडेशन और सबके सहयोग से ये स्पेस लैब यहाँ की बाराबंकी स्कूल में, गर्ल्स स्कूल में स्थापित किया गया है। तो इसमें अलग प्रकार के मॉडल्स है और अलग प्रकार की एक्टिविटी बच्चों को करने के लिए, स्टूडेंट को करने के लिए व्यवस्था की गई है। तो इसके माध्यम से इनिशियल जो एक्टिविटी है बच्चे यहाँ पे कर सकते हैं, जिसके कारण उनको स्पेस साइंस और स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उनकी रुचि बढ़ेगी, उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा और इससे आगे फिर भविष्य में अन्य जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स है उसके बारे में भी वो सीख सकते हैं। और ख़ास करके इसरो ने जो अभी नए प्रोग्राम बनाए हैं जिसमें हम चंद्र पे फिर से एक बार जाने वाले हैं और पूरे साउथ पोल पे लैंडिंग करेंगे। इसके अलावा चंद्र पे जाके वहाँ से ज़मीन के और सॉइल के जो सैंपल है वो वापस लाने का है। उसी तरह मार्स पे जाके लैंडिंग करना है और फिर भारत का अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन स्थापित करना है स्पेस में 2035 तक। उसी तरह से आदमी को चंद्र पे भेजना है, मून पे मैन ऑन द मून, उसके लिए हम प्रयोग करने वाले हैं 2040 तक। तो ये सब एक्टिविटी के लिए हमको बहुत सारे स्पेस साइंटिस्ट और स्पेस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने वाले स्टूडेंट्स की, इंजीनियर्स की, साइंटिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम चाहते हैं कि बोडोलैंड से भी कई बच्चे हमारे स्टूडेंट जो अच्छे हैं पढ़ने में, खास करके साइंस और मैथमेटिक्स में उनकी रुचि बढ़े, उसमें साइंस और मैथमेटिक्स सीख के और फिर स्पेस साइंस में आगे बढ़े और भविष्य में इसरो में ज्वाइन करें, क्योंकि इसरो को बहुत ज़रूरत पड़ेगी इतने अच्छे साइंटिस्ट और इंजीनियरों की। तो उनको शुरुआत के लिए एक प्रयास है। और यहाँ पे बोडोलैंड में 4 या 5 अभी स्थापित हो चुके हैं और 13 स्थापित करने का प्लान है। उसी तरह से हमने थोड़े समय पहले अरुणाचल प्रदेश में ऐसे एक लैब का उद्घाटन किया था। तो इस तरह से हर एक ज़िले में, हर एक क्षेत्र में धीरे धीरे से सब जगह लैब स्थापित करने का प्रयास है। आसाम में एक आसाम स्पेस सेंटर ऑलरेडी आसाम गवर्नमेंट ने स्थापित किया है, तो इसरो उसको भी मदद कर रहा है। और आसाम गवर्नमेंट ने तो एक सैटेलाइट बनाने की भी घोषणा कर दी है, तो उसमें भी इसरो उनको हेल्प करेगा। तो अभी मिनिमम 3 से 5 साल लगेंगे, क्योंकि कोई भी सैटेलाइट बनाना है तो उसमें खर्चा भी होता है और उसको बनाने में टाइम भी लगता है। इसरो का प्लानिंग तो मैंने जैसे कि बताया, अभी हम कार्य कर रहे हैं मेन तो गगनयान, जो कि आदमी को स्पेस में रखना है उनको। तो अभी हमारा पहला जो शुभांशु शुक्ला हमारा जो एस्ट्रोनॉट है, जो हम ट्रेनिंग के लिए भेजा है नासा में, तो वो अभी मई एंड में वो स्पेस में जाने वाले हैं। वो जाएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहाँ पे सुनीता विलियम्स अभी जाके आई है, आपको पता होगा। तो वहाँ पे हमारा ये इंडियन 40 साल बाद पहला इंडियन है। राकेश शर्मा गए थे 1985 में, उसके बाद 40 इयर्स बाद ये पहला इंडियंस है जो शुभांशु शुक्ला एस्ट्रोनॉट, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे 15 डेज़ के लिए जाएंगे। और उस समय हम उनके साथ बातचीत भी करेंगे, वो स्पेस में रहेंगे, हम सब नीचे रहेंगे। तो ऐसा भारत के 5 सिटीज़ में इसका प्लान किया गया है। तो उसमें हम देखेंगे कि बोडोलैंड के भी कुछ छात्र आके उसमें पार्टिसिपेट करें। तो जैसे कि लखनऊ में प्लान किया गया है, त्रिवेंद्रम में प्लान किया है, बेंगलोर में और हमारे अहमदाबाद में, जहाँ से मैं आ रहा हूँ। तो वहाँ पे जब भी शुभांशु शुक्ला स्पेस में होंगे, उनसे हम आधे घंटे तक बातचीत करेंगे। तो उस समय सबको मौका मिलेगा उनसे बातचीत करने का। तो ये एक अभी नया हमारा प्रयास है। उसके बाद हमारा गगनयान हमारे छोड़ने जा रहे हैं, अभी तो बिना मानव के, मानव रहित, विदाउट मैन। उसके बाद भविष्य में 3 ऐसे और प्रयास करने के बाद विदाउट मैन, हम विथ मैन एक प्रयास करेंगे। जब फर्स्ट टाइम इंडिया विल बी लॉन्चिंग इट्स गगनयान विथ मैन इनसाइड इट। सो उसका प्लान है विद इन नेक्स्ट 2026 एंड तक ये भी स्थापित हो जाएगा। और उसके साथ साथ हम नेविगेशन, आपको पता है GPS आप सब लोग यूज़ करते हो, तो ऐसा इंडिया का नाविक नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन,
उसका कार्य भी अभी चल रहा है इसरो में। तो ऑलरेडी 4 सैटेलाइट हो चुके हैं और 3 और सैटेलाइट हम छोड़ने जा रहे हैं। तो उसके बाद आप सब लोग, आपके मोबाइल में भी नाविक आ जाएगा, तो उसके द्वारा आप कहीं भी जा सकते हो, लोकेशन के बारे में पता लगा सकते हो। इसके अलावा कम्युनिकेशन सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, तो वो तो चल ही रहा है। भारत और नासा, इसरो और नासा ने मिल के एक सैटेलाइट बनाया है, रडार सैटेलाइट, तो वो लॉन्च होने जा रहा है जून में। तो उसके लिए भी सभी लोग काफ़ी उत्सुकता से राह देख रहे हैं, तो वो सैटेलाइट भी रेडी है। तो इस तरह से बहुत सारे बोडोलैंड के भी हमारे बच्चे वहाँ आके काम करेंगे और स्पेस साइंटिस्ट बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। धन्यवाद।